Hello dear students, welcome back to your GK class. Today we'll start exercise number 36, that is people and occupations. So in this exercise dear students, we are going to learn about different people and their occupation, how they help us in different ways. Okay, so let us begin. See, fill in the blank. First is a dash helps you to learn different topics in school. Who is the person who teaches you at school? It's a teacher. So answer is teacher. Second, if you have toothache, then you go to a dash. अगर आपके दांत में दर्द है या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है in your mouth, then whom you will consult? We will go to a dentist. Third, your brother likes to click photographs, hence he wants to become a famous dash one day. So the statement is your brother likes to click pictures, and so what he wants to become? So he wants to become a photographer. So fourth is you hear sounds of different musical instruments from your neighbor's house, probably he is a dash. तो अगर आप अपने नेबर के घर से काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आते हुए सुनते हैं एंड ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, देन ही मस्ट बी अ म्यूजिशियन. Fifth, a dash helps people in getting justice by pleading their case before a judge. तो a dash, who is the one who helps people to get justice, and वो उनका केस जो है जज के सामने रखते हैं and they fight for them. It is a lawyer. Now, sixth is a dash arranges flowers in baskets, bouquets, etc. and delivers them to people, offices, marriages, etc. So, if you have any function or any event in your home anywhere, और अगर आपको डेकोरेशन करानी है फ्लावर डेकोरेशन, तो whom you will go? You will go to a florist. Florist is a person who sells flower. So the answer is florist. Seventh, and डैश प्लान्स एंड डिज़ाइंस लेआउट ऑफ बिल्डिंग. तो अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई बिल्डिंग बनवानी है या घर बनवाना है, तो हम जो पूरा प्लान आउट है, यानी कि जो मैप है घर का कि कैसे बनना है, कहाँ पे हमें बेडरूम रखना है, कहाँ पे हमें वॉशरूम रखना है, कहाँ पे हमारा लॉबी होगा, तो होम डिज़ाइन कौन ये डिज़ाइन करता है, ये सारी चीज़ें कौन डिज़ाइन करके देता है? दैट इज़ अ आर्किटेक्ट. Now 8, if you want to change the interiors of your house or office, you seek the advice of an dash. तो अगर आपको अपने घर में कुछ सेटिंग चेंज करनी है या फिर आपको लुक चेंज करना है अपने घर का या ऑफिस का, तो आप किसको एडवाइस लेते हैं या किसको हायर करते हैं? यू गेट टू एन इंटीरियर डिज़ाइनर. तो इंटीरियर डिज़ाइनर कौन होते हैं डियर स्टूडेंट? दे डिज़ाइन द होम्स, ऑफिसेस. तो कैसे सेटिंग रखनी है, कैसे क्या प्लान आउट करना है, दे डिसाइड दैट. Ninth, a person who wants to become an dash studies astronomy. तो अगर किसी को एस्ट्रोनॉमर बनना है ना, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी. द स्टडीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट्स and all these objects is known as astronomy. तो अगर आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ने में इंटरेस्ट है and you want to become something in that field, तो then you will become an astronomer and you have to study astronomy. Now 10th is your cousin is learning various dance forms so that she can become a successful dash one day. तो अगर आपको या आपके कज़न को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है डांस सीखने में, एनी टाइप ऑफ, एनी काइंड ऑफ, एंड तो और वो बड़े होकर अपना करियर भी इसी फील्ड में बनाना चाहते हैं, दैन ही विल बी अ डांसर और अ कोरियोग्राफर. तो यहाँ पे आई हैव रिटन बोथ द वर्ड्स इन योर हेल्प बॉक्स. ओनली डांसर इज़ गिवन, बट आई हैव रिटन हेयर डांसर एंड कोरियोग्राफर. तो डांसर एंड कोरियोग्राफर आर सेम. 11, a dash grows different crops in the field. So who is the person who grow crops for us? Very famous and very simple, farmer. 12, a dash develops different kinds of computer software. तो जो इंसान
डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशंस बनाते हैं फॉर लैपटॉप, फॉर कंप्यूटर, फॉर मोबाइल फ़ोन, जैसे भी जितने भी आप ऐप्स यूज़ करते हैं फ़ोन में, इट इज़ डिज़ाइन बाय समबडी. तो दैट समबडी इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर. तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का क्या काम होता है? ऐप्स डिज़ाइन करना for laptops, computer and mobile phones. Now let's talk about quick facts. These days people have multiple occupations. Example, a software engineer can also be a writer. ठीक है, आजकल के टाइम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अर्न अच्छा करना चाहते हैं, तो दे डू मल्टीटास्किंग. यानी कि मल्टीटास्किंग, एक ही टाइम पे दो चीज़ें करना चाहते हैं. जैसे कि एक डॉक्टर साथ में जो है अपना एक क्लिनिक भी ओपन कर लेते हैं. ओके, तो दे डू जॉब ऑल्सो, दे गेट टू नो देयर क्लिनिक ऑल्सो. एंड जैसे कि अगर कोई इंजीनियर है, उनको राइटिंग में बहुत शौक है, तो दे कैन बिकम अ राइटर. ओके, एंड इफ़ समबडी इज़ अ businessman and he has interest in poetry, तो वो पोएट बन जाते हैं. तो एट अ सेम टाइम यू कैन डू टू थिंग्स. और आजकल ये सारी चीज़ें बहुत फेमस हैं, दैट पीपल डू मल्टी ऑक्यूपेशंस. Now coming to more about, occupation is a job or work that one has to do in order to earn money. A professional is a person who is an expert in his occupation. He has a deep knowledge of skills required in the particular profession. तो अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन और प्रोफेशनल, यानी कि प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है. ऑक्यूपेशन क्या है? ये जो काम है जो हम कर रहे होते हैं. ओके, एंड वी आर डूइंग इट टू गेट मनी, टू अर्न मनी, बट इट डजंट मीन कि हम उस काम के लिए परफेक्ट हैं या वो काम हमारे लिए परफेक्ट है. कई बार ऐसा होता है, इंसान लाइक बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी टीचर बन जाते हैं. तो दे आर डूइंग दैट जॉब फॉर टू अर्न मनी, ठीक है, बट दे आर नॉट फिट फॉर द जॉब. एंड some people have done something else and they are working in some other department. तो वो इसलिए क्योंकि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई या फिर they were able to do it, तो उन्होंने वो चीज़ ऑप्ट कर ली. बट प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल होता है वो इंसान जो कि अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो. ओके, जैसे कि आपका हो गया CS हो गया, CA हो गए, वो अपनी जो उनका प्रोफेशन है कंपनी अकाउंटेंट का या फिर कंपनी सेक्रेटरी का, तो वो उस चीज़ में फील्ड में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं. एंड दे हैव एवरी टाइप ऑफ नॉलेज, सारी नॉलेज उन्हें होती है. सो व्हाट दे नीड टू डू एंड वट एवर दे आर रिक्वायर्ड टू डू. So this is all for today, dear students. Keep revising, keep learning. Now for any mistake and query, you can call me as usual. So take care and keep shining. Thank you.